Hey, hi students. This is my fifth video on the demand chapter. Already we have done with our four videos. I have uploaded, and in my first video we have learned the meaning of demand and the types of demand. In my second video we have learned the factors affecting demand. Third video was all about the individual demand and market demand, and in my fourth video we have learned the very important concept, the law of demand. Now this is the last video of third A chapter of your economics HSC board. That is, in this video we will learn about the variation in demand, changes in demand, increase and decrease in demand, expansion and contraction in demand, and distinguish between changes and variation in demand. So let's start with the concept. What is variation in demand and changes in demand? We have already learned कि there are various factors which affects the demand. बहुत सारे factors हैं जो demand को affect करते हैं. हमने देखा था P3 अतीफ, याद है आपको? P3 अतीफ, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन याद रखना. P3 अतीफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बहुत बार रिपीट होने वाला है. ये हर क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इसका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है. P3 अतीफ मतलब डिमांड को अफेक्ट करने के बहुत सारे फैक्टर्स है. प्राइस है, पॉपुलेशन है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, कंज्यूमर्स टेस्ट हैबिट, कंज्यूमर्स इनकम एंड फैशन. ये सारे फैक्टर्स है जिससे डिमांड अफेक्ट होता है. लेकिन डिमांड के जो वेरिएशन है, जो फ्लक्चुएशन है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड. वेरिएशन इन डिमांड कब कहते हैं? जब डिमांड when demand changes because of changes in only price. याद रखना, when demand changes because of changes in only about price, and when demand changes in P2 अतीफ. जब डिमांड प्राइस के वजह से चेंज हो तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड. और जब डिमांड प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स के वजह से चेंज हो, मतलब नॉन प्राइस फैक्टर्स है, जैसे कि P2 अतीफ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट के वजह से, कंज्यूमर्स का टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस बदलने की वजह से, कंज्यूमर्स का इनकम लेवल चेंज होने की वजह से, और अगर फैशन चेंज होने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम कहते हैं चेंजेस इन डिमांड. और वेरिएशन कब होता है? ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस विल इंक्रीज, द डिमांड विल fall. When price will fall, the demand will increase. इसे हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड. और चेंजेस इन डिमांड में क्या होता है? डिमांड चेंज होता है ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन फैक्टर अदर देन प्राइस. ओके, लेट्स लर्न इन डिटेल वेरिएशन इन डिमांड. यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिर्फ वेरिएशन का मैंने एक्सप्लेन किया. व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, ओनली प्राइस, चेंज इन द only price of the commodity and other factors remains the same. मतलब P2 अतीफ should remain the same. So your demand is changing, your demand changes because of changes in price. Okay, so variation is divided into two parts: expansion in demand and contraction in demand. Expansion in demand and contraction in demand. How demand expands? When the price falls and demand increases. This concept is known as expansion in demand. What is contraction in demand? When price decreases, demand decreases. When price increases, the demand decreases. So expansion of demand refers to the period when quantity demand is more because of the fall in price. It is the period when quantity demand is more because of fall in the price. And contraction in demand, it is the period it takes place when the quantity demand is less due to rise in the price of the product. Okay, so let's learn with the diagram. Here you can see I have already made the format of the diagram, x-axis and y-axis, expansion of demand. Okay, you can see here expansion of demand refers to the period when quantity demand is more. डिमांड बढ़ता है कब? जब प्राइस कम होता है तो उसे हम कहते हैं ये तो एक्सपांशन है. समझो, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द डिमांड. इतने प्राइस पे इतना डिमांड हुआ है. ओके, एक समय पे क्वांटिटी डिमांड. हियर द प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल्स एंड डिमांड इंक्रीजेस. यहाँ पे डिमांड देखो बढ़ रहा है, Q से Q1 हो गया, प्राइस P1 हो गया, डिमांड Q से Q1 हो गया.
So your demand is increasing and you can see here this is the expansion. यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है. पहले डिमांड इतना था, आज डिमांड इतना हो गया. तो your demand is expanding because of fall in price. Okay, let's learn the next concept, that is contraction in demand. Contraction कब होगा? Contraction in demand कब होगा? When price increases and demand falls. जब डिमांड कम होता है, it takes place when the quantity demand is less due to rise in the price of the product. जब चीजें महंगी होने की वजह से उसका डिमांड कम होने लगता है तो उसे हम कहते हैं contraction in demand. तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देखेंगे, इतने प्राइस पे इतना डिमांड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ेगा P1, चीजें महंगी होगी और उसका डिमांड कम होगा Q1. तो यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ा है और डिमांड कम हुआ, राइट? डिमांड कम हो गया तो योर डिमांड इज फॉल्स, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड. ओके, तो पहले डिमांड इतना था, आज डिमांड इतना हो गया. पहले डिमांड इतना था, आज कम हो गया. तो योर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू फॉल इन द प्राइस. विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ओके, नेक्स्ट चेंजेस इन डिमांड. मैंने कहा चेंजेस इन डिमांड, डिमांड जब प्राइस के अलावा किसी और रीजन की वजह से चेंज होता है, जैसे कि फैशन चेंज होने की वजह से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट देखने पे भी डिमांड पे फर्क पड़ता है, कंज्यूमर का टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस बदलने से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है. जब ऐसे रीजन की वजह से, मतलब प्राइस के अलावा, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड पे फर्क पड़े तो उसे हम कहते हैं चेंजेस इन डिमांड. हियर यू कैन सी व्हेन द क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस. यहाँ पे लिखा है देखो, जब प्राइस के अलावा किसी और रीजन की वजह से अगर डिमांड पे फर्क पड़े तो उसे हम कहते हैं चेंजेस इन डिमांड. और वेरिएशन में कैसा था? इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्राइस, बट चेंजेस में क्या है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन अदर देन प्राइस. तो योर डिमांड इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन P2 अतीफ. हमारा P2 अतीफ याद रखना. तो P2 अतीफ की वजह से अगर डिमांड चेंज हो तो चेंजेस इन डिमांड, और अगर सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो तो वेरिएशन इन डिमांड. नाउ चेंजेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड. ओके, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ता कब है? जब अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, P2 अतीफ में चेंज होने की वजह से डिमांड अगर बढ़े, P2 अतीफ में चेंज होने की वजह से अगर डिमांड बढ़े तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और अगर डिमांड कम हो तो हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड. इट रिफर्स टू rise in demand due to changes in other factor and price remains the same, and your decrease in demand refers to fall in the demand due to changes in other factors, price remains the same. Individually we will see increase in demand. डिमांड बढ़ेगा कब? डिमांड बढ़ेगा कब? जब P2 अतीफ की वजह से चेंज हो और डिमांड बढ़ेगा तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड. प्राइस के अलावा किसी और रीज़न की वजह से, जैसे कि नई फैशन की चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि नया एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा तो उस चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है. कंज्यूमर का टेस्ट पर्टिकुलर चीज़ के लिए चेंज होने की वजह से उस पर्टिकुलर चीज़ का डिमांड बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड. तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वी विल सी द प्राइस विल रिमेन द कॉन्स्टेंट एंड डिमांड विल इंक्रीज. यहाँ पे देखो डिमांड Q से Q1 हो गया, डिमांड Q से Q1 हो गया, तो यार डिमांड इंक्रीजेस. देखो यहाँ पे डिमांड बढ़ गया, उसका रीज़न क्या है? प्राइस कम हुआ क्या? नहीं, प्राइस तो उतना ही है. प्राइस देखो P उतना ही है, ना ही P1 हुआ है ना ही P2 हुआ है. प्राइस कहीं कम नहीं हुआ ना ही बढ़ा है, बट डिमांड बढ़ गया. तो यहाँ पे डिमांड जो है एक्सपांड हुआ है. तो यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल DD कर्व है और ये DD1. तो योर डिमांड एक्सपांडिंग, इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन डिमांड. ओके, D से DD1 हो गया है. ओके, इसके नेक्स्ट डायग्राम में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन डिमांड. यहाँ पे क्या हो रहा है? इट रिफर्स टू फॉल इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. यहाँ पे डिमांड कम हो जाएगा, उसका रीज़न क्या है? यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है, उसका रीज़न है हमारा P2 अतीफ. कभी कभी P2 अतीफ में चेंज होने की वजह से डिमांड में कम हो जाता है, जैसे कि इनकम कंज्यूमर की कम होने की वजह से डिमांड कम होता है, फैशन बदलने की वजह से ओल्ड फैशन की चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है. हाँ, एडवर्टीजमेंट और टेस्ट हैबिट और प्रेफरेंस बदलने की वजह से डिमांड में फ़र्क पड़ता है. जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये है हमारा P और ये हमारा क्वांटिटी डिमांड, इतने प्राइस पे इतना डिमांड. आज क्या होगा? प्राइस पे कुछ फ़र्क पड़े ना पड़े बट डिमांड Q1 हो जाएगा.
देखो डिमांड Q से Q1 डिमांड कम हो गया यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज। ओके, सो ये ओरिजिनल डी डी कर्व था और ये न्यू डी डी कर्व DD1। तो डी डी कर्व स्लोप्स लेफ्ट, स्लोप्स शिफ्ट टू द लेफ्ट, और इंक्रीज इन डिमांड में डी डी कर्व शिफ्ट्स राइट टुवर्ड्स द राइट। तो यहाँ पे हमने देखा इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। लेट्स लर्न द डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड। वेरिएशन कब होता है? व्हेन चेंजेस इन बिकॉज ऑफ प्राइस, प्राइस के वजह से, अलोन प्राइस। यहाँ पे देखो लिखा है वेरिएशन डिमांड रिफर्स टू द चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस अलोन। सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से जब चेंज आए तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड। और चेंजेस कब होता है? व्हेन चेंजेस इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन फैक्टर अदर देन प्राइस। इसके दो टाइप्स है, हमने देखा एक्सपांशन, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। इसके दो टाइप्स है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसका मूवमेंट क्या है? इसका मूवमेंट टुवर्ड्स द अपवर्ड एंड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, और इसका मूवमेंट टुवर्ड्स द अपवर्ड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, फॉर्मिंग अ न्यू डिमांड कर्व। ओके, इसका हम मूवमेंट राइट और लेफ्ट भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द राइट एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने देखा डिमांड के चेंजेस और वेरिएशंस। ओके, तो क्या क्या कैसे इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, हाउ दिस क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन डिमांड, तो इसको वेरिएशन को एक्सप्लेन करके फिर आपको एक्सटेंशन या एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन द चेंजेस इन डिमांड, इसको भी इंक्रीज और डिक्रीज में एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंजेस, वेरिएशन एंड चेंजेस जो अभी हमने पढ़ा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रीज और डिक्रीज भी आ सकते हैं, तो इसमें आपको दो ही पॉइंट लिखना है। आप लिख सकते हैं मीनिंग, इंक्रीज और डिक्रीज में मीनिंग लिख सकते हैं, और डिमांड कर्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड एंड यहाँ पे डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। और यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें भी मीनिंग और डायग्राम भी आप बना सकते हैं और एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि योर डी डी कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, योर डी डी कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इस तरह से आपको 2-2 मार्क्स के लिए ये डिस्टिंग्विश पढ़ना है। ओके, और ये जो है 4-4 मार्क्स के लिए ये कॉन्सेप्ट आ सकता है आपके एग्जाम में, या फिर डिफाइन में भी आ सकता है। तो क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। तो आज हमने पढ़ा वेरिएशन इन डिमांड, चेंजेस इन डिमांड। ओके, अब मैं इसके बाद वाले जो जितने भी लेक्चर्स बनाऊंगा वो डिमांड के ऊपर ही होंगे, इकोनॉमिक्स के, बट वो 3rd B चैप्टर होगा। 3rd A चैप्टर इज कंप्लीटेड। 3rd B चैप्टर में आपको हम सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो 3rd B वाले चैप्टर्स के होंगे। थैंक यू सो मच।